But otherwise, if you use cotton masks, then it is breathable. Or baki medical masks, all of them are made so that they're breathable. And there should be absolutely no problem in walking with a mask on. And you should do that. आपका second question था coughing and sneezing. डॉक्टर अपर्णा जी लगता है कुछ नेटवर्क का वहाँ पर दिक्कत है डॉक्टर अनिल इफ यू वांट टू आंसर द सेकंड Yeah, क्वेश्चन so it's just very simple that if you cough or एक सा sneeze, question repeat करेंगे प्लीज डॉक्टर अपर्णा विल कम बैक टू यू गो ऑन डॉक्टर अनिल धाल प्लीज so if you cough or sneeze, there is a little more explosive force by which your aerosol is being generated. It can travel faster, it can travel further. So while during speaking or during normal conversation, it may not be that intense. So therefore, coughing, sneezing worsens it, and therefore you need cough etiquette or sneeze etiquette to be introduced. However, even while conversation happens, one has to take precaution, because even a casual conversation will have adequate aerosol generation, and therefore hum kehte hain 2 gaz ki duri and masking on both sides will prevent the transmission of this aerosol to be infected, to have infective potential to the other person. And also, Chandrasekhar, there is a related question on social media related to mask. Dr. Anil, if you can take this question, he's asking that there is a report that masks with valve are dangerous, as the valve while exhalation do not have filters, and droplets from COVID positive can come out of the mask. Your views? So let us be very clear. These masks were designed largely for prevention of respiratory problems during pollution, and the rebreathability and the ones which have a valve certainly would have a component of exhaled air which would be coming out. So therefore, the WHO has now recommended that they are not entirely safe to prevent viral aerosol transmission. And therefore, if you have one of those masks, you can cover it with an additional cotton layer or a handkerchief, and that should be enough. However, this is not something on which there is really established data, because it will be very difficult to generate this kind of data. However, let us try to be as safe as we can. Try and use your N95 masks which do not have a valve, and if you have a valve, cover it with an additional cloth layer. ठीक है जी ममता खरे भोपाल से हैं। ममता जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरी एज 59 ईयर है और मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। पिछले 3 साल से मेरा इलाज हो रहा है और मैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो उसमें दी जाती है वो ले रही हूँ। तो मैं सेफ हूँ कोविड से कि कोई प्रॉब्लम है, मतलब या रिस्क ज्यादा है या रिकवरी सही रहेगी, और क्या विटामिन सी ले सकते हैं गोलियां? ठीक है, डॉक्टर अनिल से आप सीधे बात कर सकती हैं। डॉक्टर अनिल नहीं, देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो वैसे ही बड़ी विवादित दवाई हो गई थी कोविड के दौरान। अभी भी हेल्थ केयर वर्कर्स को जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक तो हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और अभी भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज इस विवाद में दोनों तरफ से डिस्प्यूट हुआ था। एक तरफ हम ये कहेंगे कि जिन्होंने इसको संक्रमण को रोकने के लिए सजेस्ट किया था वो डेटा भी कमजोर था, और जहां पर इसका बताया गया कि 93,000 मरीजों में इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो डेटा भी रिट्रैक्ट हुआ। तो इसलिए ये थोड़ा विवादग्रस्त डेटा है, इसलिए इस पे हम ज्यादा गौर नहीं करेंगे। हाँ, जिसको भी कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, जिसको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कार्डियक डिजीज है या इम्यून डिजीज है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक इम्यून डिजीज है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यहाँ एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा है, आपका रिस्क थोड़ा सा बाकी लोगों के बनिस्बत ज्यादा है, इसलिए आपको प्रिवेंशन और प्रिकॉशन ज्यादा लेने हैं। ये नहीं कि आप इसमें पैनिक करें कि कोई आपको बीमारी लगने वाली है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी लगे। और ऐसा हमने ये भी नहीं देखा कि इटली स्पेन में के रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों को ज्यादा बीमारी हुई, इनफैक्ट थोड़ा प्रोटेक्शन ही हुआ। अब वो क्यों हुआ वो भगवान जाने, कि वेदर वो इंडोर्स रहे, वो एक्सपोज कम हुए
या उनको उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाई इसलिए हुआ, बट आप ज्यादा परेशान मत होएं, थोड़ा बाकी लोगों के बनिस्बत आपका रिस्क है, पर अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है। ममता जी कुछ और पूछना चाहेंगी? नहीं, ठीक है। डॉक्टर अनिल, एक सवाल इस बीच में आपसे जानना चाहेंगे। अगर जो ताज़ा आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं उसके अनुसार करीब 8 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और जो एक्टिव केसेज हैं वो 3,90,000 के करीब पहुंच गए हैं। मरीजों के ठीक होने की जो दर है वो 62.61% है। लेकिन अगर हम देश के कुछ इलाकों को देखें, अब कुछ पॉकेट्स बन गए हैं जहां पर काफ़ी संख्या में कोरोना के संक्रमित हर रोज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या लगता है आपको ये? तो अगर हम ये बाकी मुल्कों की से कंपेयर करें तो जो हमारे यहाँ हो रहा है यही चीजें हमने बाकी मुल्कों में भी देखी है, और क्योंकि हम अमेरिकन ज्योग्राफी से ज्यादा फेमिलियर हैं बनिस्बत बाकी जगह के, तो आप देखिए शुरू में सारा संक्रमण न्यूयॉर्क में था, और अब देखिए जो रिसर्जेंट स्टेट्स हैं जैसे कि फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, टेक्सास, यहाँ पर ज्यादा संक्रमण हो रहा है। हमारे मुल्क में बहुत अच्छा काम हुआ, केरल में पहले इसका कंट्रोल हुआ। धारावी जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहां पर ये बिल्कुल एक्सप्लोड करके मतलब एक तरह से प्रलयकारी हो सकता था, वहां पर भी इस संक्रमण का कंट्रोल किया गया। दिल्ली हमारा अपना नेशनल कैपिटल रीजन अगला जगह था जहां पर इस संक्रमण में लग रहा था कि अभी तो ये छत को पार कर जाएगा, पर कुछ हमें लग रहा है कि नंबर्स कंट्रोल में आए हैं। नई जगह जो क्रिएट हुई हैं जैसे कि नए हब्स हैं जिस प्रकार से हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, तो हमें देखना पड़ेगा। ये शायद यही एक तरीका है इस वायरस का स्प्रेड करने का। IMA ने बोला है कि कम्युनिटी स्प्रेड है, सरकार कहती है कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। नहीं, कुछ पॉकेट्स बन चुके हैं ना, अब तो देश के अंदर कुछ पॉकेट्स बन चुके हैं जहां पर ये मामले सामने आ रहे हैं। एक इंडिविजुअल के लिए you have to take full precaution because कोई इसमें नंबर नहीं है कि आपका पास परसेंटेज 33% है, 50% है या 70% है। Every individual has to take full precaution, और ये प्रिकॉशन अगर हम लेंगे तो हो सकता है इस संक्रमण से हम एक साइकिल टूट जाएगी और एक सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अगर वो ब्रेक होगा तो शायद इस संक्रमण पे काबू आएगा, पर ये एक नेचुरल हिस्ट्री है। जिस प्रकार से बाकी मुल्कों में हुआ वैसा ही यहाँ हो रहा है, और हमें एक सेकंड के लिए भी अपनी केयर और प्रिकॉशन कम नहीं करनी। Absolutely, and we are inundated with questions on social media. Dr. Aparna, if I can come to you again. SK Chaudhary is asking that how safe is it to bring parents, senior citizens from Patna to Delhi by flight if they are not comorbid? Yes, actually the advisory right now is to avoid travel as far as possible, because during travel we are coming in contact with different people. But if travel is a must, we have to take care of the basic precautions that we are highlighting on this channel again and again. That is, maintain a safe distance, wear a proper mask. During flight, you can add on a face shield to it. You can wear gloves during that. Avoid eating anything. If you can avoid drinking during that period, during the flight, that will again be helpful. So we need to take these precautions and carry sanitizer with you. That has been allowed now, so you can carry that with you and sanitize your surroundings, even though it is already done. But still, it is better if you do that once. And avoid touching your eyes, nose, and throat. ठीक है। डॉक्टर नवीन, एक सवाल आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए। कमलेश हैं, ये पूछ रहे हैं कि प्रिकॉशन क्या होना चाहिए जो गर्भवती महिला है उसके लिए, और अगर उसको कोरोना होता है तो बच्चे पर इसका कितना असर पड़ सकता है, क्या वो भी पॉजिटिव पाया जाएगा, ये इनका सवाल है। कमलेश जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। तो गर्भवती महिला का बचाव और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, बच्चा भी और माँ। तो जो प्रिवेंशन, जो हम सावधानियां बाकी लोगों के लिए रखते हैं वही गर्भवती महिला के लिए भी हैं, पर उसको और ज्यादा अच्छे से उन सभी का निर्वाह करना चाहिए। और
अगर माँ पॉजिटिव हो जाती है, अगर कोविड हो जाता है, तो बच्चे को होने का चांस है। ऐसा अभी स्टडीज नहीं आई है कि किस रूट से होता है, मिल्क से कितना होता है, पर अगर छोटा बच्चा होता है, जाहिर है वो माँ के साथ रहेगा, क्लोज कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो बच्चे को होने का चांस रहता है। पर अगर हम हमारे हॉस्पिटल में बात करें, जो मदर्स पॉजिटिव थी, उनके बच्चे हुए, उनमें से अभी तक कोई भी बच्चा हमें ऐसा नहीं मिला जिसको इन्फेक्शन हुआ। तो ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चा इन्फेक्ट होगा, लेकिन चांस जाहिर है कि होगा, और बचाव जरूरी है। Right, they need to take special precautions. That's what Dr. Naveen is saying. Ms. Manju Kaushik is still there from Delhi. Manju ji, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। जी बताइए। सर, my first question is that how long it stays on different surfaces like polythene or vegetables, and secondly I want to know that what is the proper method of washing the vegetables, because there is a great confusion. At present I am washing it with light detergent solution, then I dip it in potassium permanganate solution, then wash with clean water. So is there anything which is proved that it kills coronavirus? So I want to know this, because in our daily life there is a use of vegetables and fruits. So please, डॉक्टर ये मेरी अनिल, प्रॉब्लम है इसको, क्योंकि ये जो चीजें चल रही हैं कि जैसे विनेगर में डिप कर दिया या किसी ने, तो ये मेरे ख्याल में एक अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। So please help me in this. जी जी आप जवाब सुन लीजिए, डॉक्टर अनिल बता रहे हैं। This question has been answered on this channel several times, and if you are a regular listener, you may have been through the previous answers. What you are doing is possibly more than enough for preventing any transmission by active utilization of any vegetables or fruit. However, I have a small submission in this regard, and it is that when you buy the vegetables and fruit, and you are at that time with your vegetable vendor, because even if we go back to what happened in Wuhan, in China, it was actually in the animal market that the transmission from the chrysanthemum bats, pangolin via chrysanthemum bats to the humans happened. So that is the time when people are generally haggling, discussing prices, and that is where your guard is actually let down. So I would firstly caution you that when you buy your vegetables, take complete precautions, go wearing your mask, maybe a shield and gloves when you buy vegetables. Thereafter, cleaning vegetables, you have already laid out a very elaborate disinfection plan, and I think this should be more than enough for any vegetable which is used. If it is a inanimate object that comes to you, maybe from, we were just hearing e-marketing and e-retail. So if something comes, well, keep it away for some time if it is not being directly used, and you can use any of these methods that you have described to sanitize your products. By and large, we don't think that Can I add something? Transmission is going to happen through infected vegetables or fruit. What is going to happen is aerosol generation from a person, infected person, or a pre-symptomatic or an asymptomatic person who has the infection to you. Right. Thank you, Dr. Anil. Thanks for answering that question. We have one more caller with us from Karnataka. Venkatesh is there. Good afternoon, Venkatesh. Go ahead. You can ask your question. Good afternoon. My question is, COVID-infected dead body, does it carry the virus? Why they are so scared? डॉक्टर अपर्णा। Hello. So, आप एक बार अपना जी सवाल एक बार और रिपीट कीजिए। the COVID-infected dead body, does it carry the virus? जी डॉक्टर अपर्णा। No, if the patient has COVID, I think you mean that. When the patient dies, the virus is there in the body, and we have elaborate guidelines for tackling the dead body of a COVID patient. So it has to be disinfected and properly packed
in polythene bags, which are sealed and then disinfected again. And it is handled by people in proper PPE. That is why the advisory is for the hospital staff to take these bodies up to the crematorium and not take it home to the person's relatives, so that even though it is disinfected all round. So the body is sent in hospital ambulances with hospital staff to the crematorium to be taken care of in people in PPE there. बिल्कुल Absolutely, there were अंकित guidelines. ढींगरा हैं अभिषेक, ये पूछ रहे हैं उस पे सोशल मीडिया पे। इनका पूछना है डॉक्टर नवीन, अल्सरेटिव कोलाइटिस का ये पेशेंट हैं, क्या इनको प्रिकॉशन लेना चाहिए? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो उसके अंदर कोई भी डिजीज है, कोई भी अगर कोमोर्बिडिटी है तो ज्यादा चांसेस होते हैं थोड़े से इन्फेक्शन के। दूसरा, अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो मेडिकेशन है वो कुछ कभी कभी हमें ज्यादा प्रोन बना सकती है डिजीज के। हालांकि बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है आज की डेट में इसके लिए, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा होगा अगर औरों से ज्यादा ध्यान रखें। जो 3-4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो कि वेयरिंग मास्क, डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग। तो अगर 3-4 चीजें ध्यान रखेंगे तो मतलब सेफ रख पाएंगे अपने आप को। And also, Dr. Anil, there is one more question on social media. He's asking that my neighbor was found COVID positive and I met him 3 days back. I have no symptoms and my Arogya Setu app shows no risk, shows you are safe. Should I go for the test? Well, I don't know how your Arogya Setu app actually shows you that you're safe, because I do hope that you were taking precautions when you met your neighbor, and by maintaining the safe distance of maybe 6 feet, and also that I hope he was masked and you were masked. And in any case, if you have any symptoms whatsoever, then day 5 of your contact, you could get yourself tested. However, if you have no symptoms whatsoever and you don't have any high-risk people in your household which may be at great risk, like elderly people, then maybe you could wait and watch. But I'm a little surprised that your Arogya Setu app has not shown you at being high risk, because if he was your neighbor, then your Arogya Setu app should have actually caught that. Because also he needs to check his Bluetooth and GPS if they are on or not. Yeah, that's but correct. Dr. Anil, you are saying that he needs to wait if he has no symptoms? See, if he has no symptoms, there is it is not really essential to keep testing anybody and everybody, as long as precautions are maintained, in which case all of us in hospitals will be getting tested every day. Yeah. Because so it is really, because we are taking precautions. And a very small observation which came from Mumbai was that people who actually worked in the COVID ICUs seldom got infections, because they were wearing full PPE gear and they were mindful of the fact that they had to take, they were all masked, they probably had face shields, they were wearing PPE gear. So there was very little transmission. Yeah. So if we have been careful, I don't think there is any reason for us to be worried, just because remotely we may have had a conversation maybe 10 feet away with another individual who was COVID positive. Yeah. If you take precautions, there is no need to worry. There is no need to panic and there is no need to worry. डॉक्टर अपर्णा, एक सवाल, काफ़ी लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी हो जाता है, क्योंकि अनलॉक का दौर चल रहा है, लोग कार्यालय जाना शुरू कर दिए हैं। तो उनका सवाल ये है कि मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ और घर में परिवार भी रहता है, तो मुझे किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए? आप अपने जूते घर के बाहर रखिए टिल नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आप जब ऑफिस से निकलते हैं और जब घर आते हैं, तब जस्ट सैनिटाइज योर कॉमनली यूज्ड थिंग्स लाइक फोन, पेन, key ring, specs, wallet. So we can sanitize all that. Come and take a bath, change your clothes. So with these precautions, I think they should be enough. If you're working in front line or actually taking care of COVID patients, you can additionally use a mask in the house when you're
talking to other inmates of the house. So that can be an additional precaution, especially if you have elderly people in the house or those with comorbidities in the house. Better to use a mask in the house also. But if you leave your footwear outside, sanitize everything and take a bath after coming back, it should be okay. So just a small addition, जी. we found that one of the places where we could be even more careful is the dining table. When you're sitting across people, you don't wear a mask when you eat food. So try and maintain a bigger distance when you are having meals together. We don't want the families to stop eating meals together, but if they can maintain a distance, then it would be more appropriate. By bigger distance, you mean at least 6 feet distance? Yes, sir, at least 6 feet distance. डॉक्टर अनिल, एक सवाल जानना चाहेंगे यहाँ पर। अनलॉक का दौर चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था उसको वापस पटरी पे लाया जाए, लोग अपने काम में वापस जाएं। इन सब के बीच क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं, हालांकि हर स्तर से लोगों से अपील की जा रही है, लोग भी पहले से ज़्यादा जागरूक हुए हैं, लेकिन लापरवाही बढ़ रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सर, इस पे थोड़ा सा मेरा एक निजी राय व्यू है, वो थोड़ा शायद लोगों को पसंद ना आए। वो ये है कि हम बहुत एग्रेसिव लोग हैं। वन अपमेंटशिप, मैं आगे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे से आगे निकल जाऊं, मेरा काम पहले, ये हमें थोड़ा बैक सीट लेना जरूरी है, तभी अनुशासन आएगा। और अनुशासन होने से अगर हम स्वयं अपना डिसिप्लिन रखेंगे तो हम इस संक्रमण से पे काबू पा सकेंगे। पर अगर हम जल्दी में रहेंगे, होड़ में रहेंगे, जिस प्रकार पहले काम करते थे, मेरा काम पहले, झगड़ा करेंगे, आप ग्रोसरी के दुकान में चले जाइए, बाहर नोटिस लगाए 6 फुट की डिस्टेंस रखिए, हर एक कोई कहता है मेरे तो 2 आइटम है, मेरा जल्दी बिल काट दो। आप कहीं पर चले जाइए, आप रेड लाइट में देखिए, एवरीबडी इज इन अ हरी। हमें एज अ पीपल, एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमें अपने आप को ज्यादा अनुशासित करना है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज करना है, तभी हम अनलॉक की इस सिचुएशन से निकल के उभर के आ सकेंगे। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। जयप्रकाश हैं ग्वालियर से। जयप्रकाश, पूछिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं आप लोग, और ज्यादातर पब्लिक हिंदी वाली है तो उनको समझ में नहीं आता। तो नहीं, आप पूछिए, हम इसीलिए अभिषेक इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं, वो अंग्रेजी में कर रहे हैं, मैं हिंदी में कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि हमारा जो डीडी न्यूज़ का व्यूअर्स है वो ऑल इंडिया व्यूअर्स है, हमें दक्षिण भारत में भी देख रहे हैं, उत्तर भारत में भी, पूर्वी भारत में भी, पश्चिम भारत में भी। आप अपना सवाल पूछिए। सर, लेकिन जब आपके जो 90% क्वेश्चन आपके अंग्रेजी में जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा हिंदी में जवाब देंगे। आप पूछिए, आप हिंदी में जवाब देंगे तो हमारे फायदा हो जाएगा सर। जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल यही था मेरा, आपके निवेदन था यही। ठीक है, धन्यवाद, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। Right, and we are also getting a lot of questions on social media. I think we are running short of time, but Dr. Anil, if you can answer this. Some patients are tested negative, but still they have symptoms of COVID, and AIIMS director had recently said that we need to be very careful with the test. What do you want to tell them? देखिए, बहुत सिंपली मैं बताऊंगा जी कि मैक्सिमम पॉजिटिविटी टेस्ट की डे 5 to day 8 आती है, डे 5 to day 10। और अगर हम ओरोफेरिंजियल या नेजोफेरिंजियल, मतलब गले में, कंठ में से स्वॉब लेंगे, और अगर ये स्वॉब सही तरह लिया जाएगा और सही तरह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो भी इसकी सेंसिटिविटी मात्र 67% है। मतलब 2/3 ही पॉजिटिव आएंगे, 1/3 में ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। और इसके लिए हम नॉर्मली या एक दूसरा टेस्ट करते हैं, और कभी कभी जब हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और हमें लगता है कि पेशेंट को लक्षण बिल्कुल टिपिकल कोरोना वायरस के हैं, तो हम शायद एक चेस्ट का सीटी भी एडवाइस कर सकते हैं। जहां पर आ गई बात एंटीजन टेस्टिंग की, ये हालांकि एंटीजन टेस्टिंग जैसे मैडम ने बताया जल्दी हो जाती है, सस्ती है, पर ये इसकी पॉजिटिविटी मात्र 50% है। तो इसलिए सरकार ने एक गाइडलाइन इशू की है कि अगर आपको लक्षण हैं तो
तो आप इस एंटीजन टेस्टिंग पे पूरी तरह भरोसा ना करके आप RT-PCR भी करा लीजिए। पर अगर हमें समझना है कि RT-PCR के साथ भी कुछ ऐसे पेशेंट होंगे, 1/3 पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें RT-PCR भी नेगेटिव आएगा, और इस सैंपल का सही कलेक्शन और सैंपल का सही ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए नेगेटिव टेस्ट को इंटरप्रेट करने में हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना इसेंशियल है। ठीक है। डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर नवीन, हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, तो आप दोनों से एक एक सवाल पूछना चाहेंगे। डॉक्टर अपर्णा, अब जो हालात बने हुए हैं, आंकड़े हमारे सामने हैं, देश के अंदर कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरी तरह से देश के अंदर देखें तो कई लोगों का इलाज हो चुका है हमारे देश में। बाकी देशों की अपेक्षा मरने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में अब आज की तारीख में आप लोगों से क्या अपील करेंगे एक चिकित्सक होने के नाते? सबको प्रिकॉशंस पूरी लेनी है, क्योंकि बिना प्रिकॉशंस के हम किसी को भी सेव नहीं कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि हमको कोरोना से हम ग्रसित ना हो, और उसके लिए 3 पिलर्स हैं: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हैंड हाइजीन। ये 3 हमको पूरी तरह से फॉलो। Right, Dr. Naveen, final reaction from you. What do you want to tell people who are scared by normal cough and cold? What do you want to tell them? Don't panic. Well, there is no need to panic, but still there is a need to be cautious all the time. So if someone has cough and cold, everyone doesn't need to get tested for the COVID. But it's very important that, because there is a chance that they might be having COVID. Yeah. So it's important they don't spread in the society, and secondly they can monitor their blood saturation. So if they can monitor their saturation, and if it's coming down, they can go to the hospital, get tested and get the further management. Right. ठीक है। इसी के साथ अभिषेक, कार्यक्रम का हमारा समय जो है वो समाप्त हो गया है, और लोगों से हम अपील करेंगे कि देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, काफ़ी लोगों का इलाज हो रहा है और कुछ संख्या भी कुछ पर्टिकुलर जगहों पे बढ़ रही है। इस सब को देखते हुए आपको लापरवाही बरतने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान आप नियमों का पालन करते थे, अभी भी आप उन सब नियमों का पालन करें। मास्क लगा के आप बाहर निकलें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई का पालन करें, इन सभी नियमों का पालन करें। Absolutely. Thanks a lot, Dr. Aparna, Professor Anil Dhal, and also Dr. Naveen Dutt. And thanks a lot for your insights. And like Chandrasekhar said, follow basic tenets, maintain social distancing, and wear your mask. This is your new normal. This is your new obligatory code. That's all we have in Dr. Speak. Hope we answered all your questions. Namaskar. Namaskar. Namaste land. Marhaban ilal Hind. Zari India. Salam India. Namaste India. Namaskar Bharata. Muy Nous India. sommes land. Nahnu hunud. India. माँ हिंदी हस्ती Mung Hindian. सलाम हिंदुस्तान। We are India. As novel coronavirus spreads around the world, where does research on a vaccine stand? Can India, that produces 60% of the world's vaccines, with its production capabilities and distribution networks, unleash the full potential of its medical diplomacy? For an in-depth perspective on solutions to the global pandemic, watch BioQuest, Researching COVID-19 on DD India and DD News.
सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका, समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं है कम। इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस। इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। ये देश आपके निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा।
इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद।